working as first the secretary and now the president of Muslim Satyashodhak Mandal in Pune, which works all over Maharashtra to bring about reforms within the Muslim community. And the word Satyashodhak is taken from Mahatma Phule, who was subjecting all traditions of the religion to scrutiny and examination. So that's why he had used the term Satyashodhak, and the same term was taken up by Hamid Dalwai, who was the founder of Muslim Satyashodhak Mandal. And after Hamid Dalwai, Professor Shamsuddin Tamboliji has been carrying on the work with the same dedication and greater vigor all over Maharashtra. He also edits the journal of Muslim Satyashodhak Mandal, a quarterly journal, and he has also written extensively about the issues of Muslims in Maharashtra, especially Muslim women and their plight. So we are currently facing a very, very big problem of polarization for the last almost 10 years. And Professor Tamboli will take us to what we can do in the present situation to end this kind of hatred, politics of hatred. शमसुद्दीन जी, आपके लिए आपका स्वागत है और over to you. Thank you, Dr. Ashutosh ji. First of all, I express my deep gratitude for organizing this timely seminar, or rather webinar. And the topic is very important, particularly when there is a complete restlessness among Indian society. I also thanks all activists of Jan Shakti who have organized this webinar. Dr. Ashutosh ji has introduced me. Dr. Ashutosh ji himself is academician and activist that we all know about him. I think Sudhir Gangotra is also here. Subhash Wareji, Mukta ji, and Jaya Madam has talked a lot on their given topic. The topic which is given to me is नफरत को मिटाए. हमें देश को जब स्वतंत्रता मिली, उसी के साथ में दुर्भाग्य से देश का पार्टीशन हुआ. And this is the time when the seeds of poisons, hatred were sown in Indian society. और हमें पता है कि ये जो नफरत थी, इस नफरत की वजह से ही देश के नेता महात्मा जी, जिन्होंने नॉन वायलेंस, पीस, लव, ट्रुथ इन प्रिंसिपल को लेकर आजादी का आंदोलन छेड़ा था, जिन्होंने कहा था कि an eye for an eye will make the entire world blind. और ये भी चाहते थे कि वो धार्मिक थे, लेकिन उनकी धार्मिकता की जो परिभाषा थी वो ये थी, वो कहते थे मेरे लिए वही आदमी सही तरीके से धार्मिक है जो औरों के वेदना जो है, दुख है, उसको समझता है. आज हम देश के अमृत महोत्सवी साल में हैं और आज ये वेदना समझने से के बजाय नफरत बढ़ाने वाली ताकत इकट्ठा आई है और देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां उन्होंने खड़ी की है. सर, मी एवढं ट्रान्सलेट करू का एवढा फक्त? Okay. Yeah. Professor Tamboli says that Mahatma Gandhi himself was a religious person, but his definition of a religious person was one who can understand the pain and suffering of others. And it was the powers which brought about his assassination, where the powers who have risen
with the partition, and they are trying to sow the poison in our society, and that is what is creating a big challenge before us. Yes. We have observed the peak, the highest point of communal politics at that time, communal hatred. But after the partition, we are very lucky that the leaders of India were very progressive, they were liberal, they were secular, they were democratic. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel, Law Minister Dr. Babasaheb Ambedkar, and Education Minister Maulana Abul Kalam Azad. These were the people who tried to give shape to our society through the values which were mentioned in our Indian Constitution. But these days, we are observing how the values which are enshrined in Indian Constitution are violated. Subhash Vareji has rightly pointed out some of the incidents which are taking place these days. As we are celebrating the 75th Independence Day of our India, unfortunately, we have to celebrate the death anniversary of Mahatma Gandhi also. And during this time, we have observed, we are witness of the assassination of Dr. Narendra Dabholkar, Comrade Govind Pansare, Dr. Kalaburgi, and the same way Gauri Lankesh also. Apart from the assassination, the murder of these stalwarts, social activists, the incidences of mob lynching also are increasing. We have seen in Pune, Mohsin Sheikh was assassinated. Then Pehlu Pathan was there. And these Go Rakshaks are taking law in their hand and creating fear in our society. So this is the thing, that when we are celebrating 75th year of our India's independence, we are restless, we are disturbed, we are under fear, and we are constantly listening hate speeches of the politically motivated people. This is really very unfortunate fact that we are going through. And that is why what I think, the way they are making polarization of the society for just to get political benefits out of this situation, they are increasing hatred, nafrat among the people, and the Muslim community particularly is becoming the victim of this situation. Sir, you want to say something? Okay. Now, Muslim Satya Shodhak, we are trying to organize interfaith dialogue programs, communal harmony, interfaith marriages, and all these efforts these days are under the, we have to organize under the stressful situations. ये जो हकीकत है कि जो हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं कि आपस का संवाद बढ़े, विश्वास बढ़े, और इसी के साथ में देश में सेक्युलर इंटीग्रेशन ये बढ़ने की कोशिश करें। इन्हें सेक्युलर इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हिंदुओं का संगठन करना, इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। और हमें पता है कि इस साल में ही जब हम हमारे देश की स्वतंत्रता सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन जो गुजरात इंसिडेंट हुआ था, मासाकार्स हुआ था, उसी बिल्किस बानो जैसे एक महिलाओं के जो रेपिस्ट है, जो 11 लोग हैं जिन्होंने जिस तरीके से उसके लड़की को भी मारा था, इन क्रिमिनल जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने एक शिक्षा दी थी, उनको छुड़ाया गया। ना सिर्फ उनको सवलत दी, बल्कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया, ये सिर्फ नफरत बढ़ाने वाली ही बात थी। जैसे कि हमें बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक के जो इंसिडेंट्स देखेंगे,
तो किस तरीके से फैब्रिकेटेड मैसेज फैलाकर मुसलमानों को कॉर्नर करने की एक कोशिश की जा रही है। जैसे कि लव जिहाद जैसा जो एपिसोड है, कि लव जिहाद अभी तक ना डिस्ट्रिक्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहां पर भी एक भी केस प्रूव नहीं हो गई, फिर भी हजारों केसेस लव जिहाद के हैं ये कहकर जन आक्रोश मोर्चा काढ़ा जा रहा है। और उसमें मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ डिलिबरेटली, सिस्टमैटिकली, वेल प्लान्ड एक कैंपेन चला जा रहा है। इस कैंपेन को हम किस तरीके से रोकेंगे ये देखना पड़ेगा। हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि जो लोग यहाँ पर इस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, जन आक्रोश मोर्चा काट रहे हैं, हेट स्पीचेस बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करो, गुना। लेकिन इसको सही ढंग से सीरियसली नहीं लिया जाता, ये भी एक बहुत दुर्भाग्य ऐसी स्थिति है। बीच में हमने देखा कि जैसे तलाक, ये तो हम तो चाहते हैं कि ज़बानी तलाक न हो, मुस्लिम औरतों को इस तरीके से अन्याय में नहीं हो, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, हिजाब को लेकर जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, आजान और भोगा इसको मिलाकर, तो उसमें फैक्ट्स कितने हैं और मिथ्स कितना है ये देखने की दृष्टि आम आदमी में नहीं होती। लेकिन आम आदमी के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोशिश हो रही है, उसको मुझे लगता है कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आज बहुसंख्यक जो समाज है उसमें से बहुत थोड़े लोग हैं कि जो इस तरीके की नफरत के दीवारें खड़े कर रहे हैं। आम बहुजन जो समाज है, मेजॉरिटी में के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इस बातों को पसंद ही नहीं है, वो नहीं चाहते, वो मिलजुल कर ही रहना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग खराब करने की जो कोशिश हो रही है, मेरे लिए ये भारत का भविष्य ये बहुत ही डेंजरस बोलेंगे, या तो डिस्टर्ब करने में, और जिसके वजह से इंटरनेशनल लेवल पर ही एक बड़ा मसला खड़ा हो, इस तरीके के एफर्ट्स होने जा रहे हैं। अभी यहाँ तो ये चल रहा है कि मुसलमानों को जितना भी हो उनको वीक बनाने की कोशिश है। फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रद्द करेंगे, जो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, संशोधक है, रिसर्चर्स है, मौलाना आजाद फेलोशिप भी उन्होंने कैंसिल करेंगे। कर्नाटक जैसे राज्य में जो 4% बैकवर्ड मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन रखा हुआ था, वो भी खत्म करके ये रिजर्वेशन किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बताकर मुसलमानों को कॉर्नर करना, एक बाजू ले जाना और उनकी ताकत कम करना, और फिर आम बाकी के लोगों में थोड़ा अच्छे दिन की एक आशा, एक होप्स पैदा करना और पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए एक माहौल तैयार करना, ये सब कुछ चल रहा है। तो इस बात को मुझे लगता है कि हमें ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये करते समय हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से आज का गवर्नमेंट भी हो कि मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की जो कोशिश चल रही है, फिर मॉन्यूमेंट्स के नाम बदले जा रहे हैं, गांवों के नाम बदले जा रहे हैं, और जो जिन्होंने एक देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, नेशन बिल्डिंग में जिनका एक बहुत अच्छा योगदान रहा है, उनके भी बारे में एक नफरत खड़ा करने की, डिवाइड एंड रूल करने की एक जो साजिश है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और हम जो इकट्ठा आए हुए जो लोग हैं, अलग अलग राज्य से है, तो जनशक्ति के तरफ से मैं ये चाहूंगा कि वेबिनार इस तरीके से आभासी उपक्रम के साथ साथ हमें कुछ एक्टिव प्लान करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा, और जिस प्रोग्राम को लेकर निर्भयता से आगे जाना पड़ेगा। जो लोग खामोश है, चुप है, उनको बोलने की ताकत देना, ये शक्ति देना, इसकी भी मुझे जरूरत लगती है। हमारा देश जो है
वहां पर बुद्ध का मैसेज है, महावीर का मैसेज है, यीशु का मैसेज है, यहाँ पर ज्ञानेश्वर, तुकाराम इन जैसे संतों का मैसेज है, यहाँ पर सूफीज्म का भी माहौल है। तो ऐसे माहौल होते हुए भी, कल्चर ऑफ लव होते हुए भी, कल्चर ऑफ हेट्रेड पैदा करना, ये इंसानियत को ही धोखे में लाए जैसा है। तो मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ पैम्पलेट्स निकालेंगे, बुकलेट निकालेंगे और इस माहौल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये जरूरत नहीं कि आज देश में क्या चल रहा है इसको उजाला देने के लिए उसका रिवीजन करने की मेरी जरूरत नहीं। हम सब एक्टिविस्ट हैं, खुली नजर रखकर क्या चल रहा है ये हम देखते हैं। इस सेमिनार में आशुतोष जी ने, जनशक्ति ने मुझे दावत दी, इसका एक भाग बनने का, एक हिस्सा बनने की मुझे एक मौका दिया, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you, Professor Tamburi, for pointing out that in addition to this kind of webinar, we have to also organize face-to-face conference and go fearlessly to the people and tell them that our country's foundation is secular. वो बताने की जरूरत है, ये आपने बताया, बहुत ही बढ़िया है। और हम अभी हमारा आखिरी जो प्रेजेंटेशन है, इसके लिए मैं श्री सुभाष देवरे जी को एक बात रखना चाहता था कि वो यही है, ज्यादा तो वो भी पता है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से बीच में कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्म को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, अभी उसी तरीके से द केरला द स्टोरी ऑफ मिसिंग गर्ल्स, इसका अभी इस्तेमाल हो रहा है। उसमें शुरू में ये बताया था कि 3200 लड़कियां मिसिंग हुई है, तो उसको जब चैलेंज किया गया तो ये बताया गया कि इतने नहीं, हजारों लड़कियां मिसिंग हुई है, और आप कहा जा रहा है कि उसका भी प्रूफ कुछ है, तो एक भी केस नहीं, तो एक भी अगर कोई केस रहेंगी तो उसके खिलाफ हम है। तो 3200 से 1000 तक आए, 1000 से कुछ लोग 1 तक आए, और अभी कह रहे हैं कि ये भी सही नहीं है। तो ये जो फैब्रिकेशन है, इसको हम कैसा फेस करेंगे, इसकी भी एक नीतियां हमें सोचना पड़ेगी। So he say, Professor Tamburi is saying that there are film media is being used to fabricate myths like 32,000 and then 3,200 missing girls from Kerala. So we have to think of a strategy to expose this kind of fraudulent filmmaking as well. अभी मैं